Good morning, everyone. Right now, again, I come back in our mathematics class better, and we are on our last topic of solving the equation, that is method of cross multiplication. Okay, this one is our last topic. Already better we discussed about graphically solution and elimination process, substitution process. All the process are done by our end better. This one is last topic by cross multiplication method. What is cross multiplication method? At the first we should to pick up two equations. This one a1x plus b1y plus c1 equals to 0, and this one is a2x plus b2y plus c2 equals to 0. Fine. So right now better we have a man-made, means this one is by me, a technique. The technique is, you have to remember something. You can focus here. That is, a format is written by me. That is y equal to xy. Y equal to xy. What is the meaning of y equal to xy? Y means better coefficient of y in both the equation. You can see here the coefficient of y here in equation 1 is b1 and equation 1 is b2. You can see here b1 and b2. And right now better equal to means what better? Real constant. Means you can see here better, this one is our real constant, this one c1 in equation 1 and c2 in equation 2. Okay better. Right now x means simultaneously the coefficient of x in both the equation, that is a1 and a2. You can see here a1 and a2. Fine. And repeat y again, because here is y and you can see here is also y. To repeat y again means b1 b2 again repeated. Better, you can see here two types of arrows are put down by me. First one is by red and second one is by blue. So at the first we will follow the blue. Okay, blue arrow. The blue arrow means you can see here b1 to b2, c1 to a2 and a1 to b2. Okay, and after that we will follow the red arrow. Now what is the meaning of this better? At the first we should to learn a pro forma, x upon something, y upon something, 1 upon something. This one is pro forma in each and every question for cross multiplication. Take. So at the first you can follow the arrow b1 to c2. You can see here b1 to c2, then b1 c2 is written by here. Second, cross c1 to a2. Okay, you can see c1 a2, and after that a1 b2, and you can see here a1 b2. Now put down minus everywhere. Here is minus, here is also minus. Now follow the red arrow b2 c1. You can find here b2 c1, c2 a1, c2 a1 and a1 b2, a1 b2. This one is the main thing बेटा, बस आपको यही खाली याद रखना है. अगेन आई रिपीट, इन मिसलेनियस लैंग्वेज ऑल्सो बेटा हमारे पास दो इक्वेशन है. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से जब भी हम सॉल्व करेंगे बेटा, हमारे पास दो इक्वेशन रहते हैं बेटा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0. तो दोनों इक्वेशन में से सबसे पहले y के कोफिशिएंट को लिख दीजिए, फिर रियल कांस्टेंट को लिख दीजिए, फिर x के कोफिशिएंट को उठा के लिखिए, फिर y को अगेन रिपीट कर दीजिए. बस यही करना है बेटा. ये टेक्निक है बेटा जिससे आपको फॉर्मूला लर्न नहीं करना पड़ेगा, जैसे बुक्स वगैरह में लर्न करना पड़ता है वो नहीं लर्न करना पड़ेगा. इसलिए टेक्निक हमने बनाया है बेटा. और उसके बाद अब 1 बाई 1 एरो, तो एक कोई ऑर्डर फॉलो कर लीजिए. जैसे अप टू डाउन, हमने अप टू डाउन एरो को पहले फॉलो किया, मतलब b1 से c2. इसी तरीके से आप एरो लगाते जाइए. फिर रिवर्स में जैसे b2 से c1, c2 से a1, a2 से b1, इस तरीके से एरो लगते गए. रेड वाला रिवर्स है, ब्लू वाला फॉरवर्ड है. ठीक है बेटा, उस हिसाब से देखिए. कोई अगर इसका रिवर्स अगर पूरा फॉलो करता है तो उसमें कोई सोल्यूशन में कोई दिक्कत नहीं है. तो इस टेक्नोलॉजी को हम याद रखेंगे. x अपॉन इक्वल्स टू y अपॉन इक्वल्स टू 1 अपॉन. ठीक. तो अब देखते हैं एक लाइव एग्जांपल हम लोग लेते हैं बेटा. थोड़ा सा रोटेट हो गया बेटा. हाँ, एक लाइव एग्जांपल अब हम लोग लेते हैं इसके बाद. ये तो बेटा किस तरीके से टर्मिनोलॉजीज़ है ये हम लोगों ने सीख लिया. अब लाइव एग्जांपल देखते हैं बेटा. ये देखिए बेटा, एक इक्वेशन हमने लिया है सॉल्व करने के लिए. सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस. तो इक्वेशंस हमारे क्या क्या है बेटा, अब देखिए 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y
इक्वल्स टू 17 एंड 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 6। और अब देखिए यहाँ पे मेंशन कर दिया गया बाय द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में हम ग्राफिकल नहीं यूज़ कर सकते हैं, हम सब्स्टिट्यूशन नहीं यूज़ कर सकते, एलिमिनेशन नहीं यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे बाउंडेड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो सबसे पहले हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया, 17 को लेफ्ट हैंड साइड में लाके और 6 को लेफ्ट हैंड साइड में लाके। डैट इज़ 2x प्लस 3y माइनस 17 इक्वल्स टू 0 एंड 3x माइनस 2y माइनस 2y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 हो गया। अब हमने जो आप लोगों को इससे पहले सिखाया था, सबसे पहले y के कोफिशिएंट को लिखिए, फॉलो कर सकते हैं। देखिए 3 और माइनस 2 है, देखिए 3 और माइनस 2 लिखिए, फिर इक्वल टू मतलब रियल कांस्टेंट माइनस 17 और 6 है, देखिए माइनस 17 और 6 लिखिए। फिर x के कोफिशिएंट को लेके 2 एंड 3, अब देखिए 2 एंड 3 लिख दिए। फिर y को रिपीट कर दिए 3 एंड माइनस 2 अगेन। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं y इक्वल टू एक्स वाई वाला हो गया बेटा। बहुत सिंपल है, 2-3 क्वेश्चन जैसे हम करते हैं बेटा, बहुत स्ट्रॉन्ग कीपिंग हम लोग की आ जाती है इसके ऊपर। अब फॉर्मेट वही है बेटा, x अपॉन इक्वल्स टू y अपॉन इक्वल्स टू 1 अपॉन। ओके, तो ये मेरा फॉर्मेट है बेटा, आप देख सकते हैं x अपॉन y अपॉन 1 अपॉन, और नीचे जो डिनोमिनेटर है इसी के लिए हम ये स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। डिनोमिनेटर ये फॉर्म करता है। देखिए पहले ब्लू वाला एरो 3 से माइनस 6, तो आप देखिए 3 इंटू माइनस 6, फिर 17 टू माइनस 17 टू 3, देखिए माइनस 17 इंटू 3, फिर 3 से माइनस 2, अब देखिए सॉरी 2 से माइनस 2, अब ये देखिए 2 से माइनस 2 तो 2 इंटू माइनस 2। उसके बाद रिवर्स एरो माइनस 2 इंटू माइनस 17, जो रेड वाला है देखिए हम रेड से लिखे जिससे कि आपको समझ में आए, और 3 इंटू 3। क्लियर है बेटा, ध्यान से फॉलो करिए एरो को अच्छी तरीके से। आप अपने स्क्रीन में पॉज भी करके देख सकते हैं इसको अच्छी तरीके से। पहले ब्लू वाले जितने भी एरोज हैं उनको लिखते गए, फिर माइनस साइन सब जगह दिए, आप देख सकते हैं सब जगह माइनस साइन। ये देखिए यहाँ पे एक माइनस है, यहाँ पे एक माइनस है, यहाँ पे एक माइनस है, हर जगह माइनस देंगे। डेट्स अनदर टॉपिक कि माइनस माइनस मिलकर प्लस बन जाए, उससे कोई इश्यू नहीं है बेटा। अब 3 इंटू माइनस 6, तो 3 इंटू माइनस 6 देखिए माइनस 18 हो गया, माइनस 2 इंटू माइनस 17 माइनस 34 होगा बेटा। बट माइनस माइनस इंटू होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 34। और बाहर देखिए एक माइनस साइन है, तो ऑल ओवर माइनस 34। माइनस 17 इंटू 3 माइनस 51, माइनस 6 इंटू 2 माइनस 12, माइनस माइनस प्लस प्लस 12। 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4 हो गया बेटा, एंड माइनस 3 इंटू 3 माइनस 9। अब खाली देखिए प्रोसेसिंग, अब सॉल्विंग है बेटा बस। अब देखिए माइनस 18 माइनस 34 कितना होगा, 4 8 12 2 रिमेनिंग एंड 1 3 1 4 एंड 1 5, दोनों माइनस है तो माइनस 52 हो गया। माइनस 15 माइनस 12, ठीक, प्लस माइनस है मतलब लेस होगा बेटा, जो हमारे रूल्स है बस नॉर्मल रूल्स। माइनस 39 हो गया, और माइनस 4 माइनस 9 माइनस 1 अपॉन 13 हो गया। क्लियर बेटा। अब एक बार क्या करना है बेटा, एक बार x को इसके इक्वल करेंगे बेटा, मीन्स एक बार x को कांस्टेंट के इक्वल और एक बार y को कांस्टेंट के इक्वल। जब x को कांस्टेंट के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, y को कांस्टेंट के इक्वल करेंगे y की वैल्यू आएगी। देख कैसे होता है बेटा, x अपॉन माइनस 52 इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 13। देखिए x इक्वल्स टू माइनस 52 बाई माइनस 13, माइनस माइनस कैंसिल, 13 4 जा 52, तो x इक्वल्स टू 4 आ गया। उसी तरीके से y अपॉन माइनस 39 इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 13, तो y इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा, माइनस 39 बाई माइनस 13, तो माइनस माइनस कैंसिल होकर प्लस हो गया बेटा, 13 3 जा 39, देन y इक्वल्स टू 3। तो राइट नाउ बेटा व्हाट्स आवर आउटपुट, आवर आउटपुट इज x इक्वल्स टू 4 एंड y इक्वल्स टू 3। You can counter check by put down the value of x and y in equation also बेटा। ओके, तो समझ में आ रहा है बेटा किस तरीके से हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व किया। बहुत सिंपल है बेटा ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना, बस आपको एक बार स्टेप्स याद रखने हैं। दोनों इक्वेशन है, दोनों को आप सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए बेटा। लिखने के बाद y इक्वल टू एक्स वाई, मीन्स y के कांस्टेंट, x के कांस्टेंट, आई एम सॉरी ये इक्वल टू मीन्स रियल कांस्टेंट है बेटा। y के कांस्टेंट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ y, एंड x के कोफिशिएंट ये हो गया बेटा, एंड y रिपीट अगेन, तो y इक्वल टू एक्स वाई का वो फॉर्मेट हो गया। फिर 1 बाई 1 आपको 2 कलर के पेन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं बेटा, ये तो हमें आपको समझाना था इसलिए हमने 2 कलर के पेन यूज़ किए। यू कैन यूज़ द सिंगल कलर ऑल्सो। 1 बाई 1 अप टू डाउन आप एरो लगाते जाइए 1 बाई 1, जैसे इस तरीके से अप टू डाउन एरो लगाते जाइए और लिखते जाइए प्रोडक्ट करके कहाँ से कहाँ एरो जा रहा है। आप देखिए 3 से लेके 6 तक एरो, माइनस 6 तक गया तो 3 इंटू माइनस 6 यहाँ पे दिख रहा है। उसी तरीके से पूरे के पूरे फॉर्मेट है बेटा।
ठीक है, एक बार पॉज करके वीडियो आप देखिएगा और मिला के देखिएगा कि कहाँ से कहाँ एरो मीट करवा रहे हो। देन माइनस दे के रिवर्स एरो का साइन आपका होता जाएगा बेटा, और उसके बाद फुल प्रोसेसिंग होने के बाद फाइनल आउटपुट। ओके बेटा, तो इस तरीके से आप इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा, और जो भी डिफ़िकल्टीज़ आएगी ग्रुप्स में आप डाल दीजिएगा, इसके थ्रू हमारे पास क्वेश्चंस पहुंच जाएंगे, हम शॉर्ट आउट करके उसका सोल्यूशन आपको भेज देंगे। ये लास्ट टॉपिक हम लोग का ख़त्म हो गया बेटा। इसके बाद हम लोग करेंगे बेटा स्टोरी सम, जिससे आप लोग वर्ड प्रॉब्लम कर रहे हो, तो वर्ड प्रॉब्लम तरह तरह के वर्ड प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करेंगे। ऐसे सिखाने की जो चीज़ें हैं, मतलब हाउ टू लर्न, वो अब एक तरीके से कंप्लीट है, मतलब कोई टॉपिक हमको बताना नहीं है। हाँ, वर्ड प्रॉब्लम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस ज़रूर करनी है बेटा, एकदम नई नई चीज़ें होती हैं। अब तक तो ये है कि इक्वेशन है हमारे पास और हमको खाली सॉल्व करना है, और वर्ड प्रॉब्लम में क्या होता है बेटा कि हमें इक्वेशन क्रिएट करना है, देन वी हैव टू सॉल्व। तो देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम कैसे होता है बेटा। तो फिलहाल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को अच्छी तरह से ओके।